भी करना होगा, so tomorrow the same lecture will be, yes, recording has started now, no problem. Okay, so IBPS के अंडर में there are two chances, one you can try for assistant level, one you can try for PO level. Again there is a one more chances I would say under IBPS, I'll just write here, which is called RRB. Yes, what is RRB, students? Stand for what do you mean by RRB? RRB is nothing but what? Regional rural banks. Under regional there are two banks comes, one is what? VKGB. What is VKGB? Vidarbha Konkan Gramin Bank. And there is a one more bank, that is MGB. What is MGB? Maharashtra Gramin Bank. Clear everyone? Write down what is the full form of VKGB? Vidarbha Konkan Gramin Bank. And what is MGB? Maharashtra Gramin Bank. This is sponsored by Bank of Maharashtra. Please write down this. Under Government of India. Yes. Is this clear everyone? So nothing but what? If you are working with MGB, it means what? Indirectly you are working with what? Government of India. Second, Vidarbha Konkan Gramin Bank, Bank of India, sponsored by Bank of India, under Government of India. Yes. What is MGB? Maharashtra Gramin Bank. इसका हेड ऑफिस कहां पर है? औरंगाबाद. और इसका हेड ऑफिस कहां पर है स्टूडेंट? नागपुर. Yes. Clear everyone this? Total number of branches of 412. Okay, still students are joining. Okay. Okay, welcome Harshal. Welcome to session. And we have 321 branches. So, ये आपको clear हो गया everyone? This clear everyone? Any doubt here? Students, if this clear, type yes in the chat box. Whenever I ask any question to everyone, so please reply. Is this clear everyone? Yes, yes. Thank you so much. Thank you for your wonderful reply, student. It's really great to have you on board today. Thank you so much. Thank you so much. Okay. So under IBPS, you will get two chances. One for what? Public sector bank. There are 11 public sector banks. And second is what? RRB. What is RRB? RRB is nothing but what? Regional Rural Bank. Clear this everyone? Okay. Now, second chance you'll have यहाँ पर SBI. Write down what is SBI, student? SBI is nothing but what? State Bank of India. अगर आप SBI में काम करना चाहते हो, if you're planning to work with SBI, so again you have a two chances. One as an assistant and as an what? PO. तो स्टूडेंट देख लीजिए ये साल का ना, we'll talk about 2022. We'll talk about 2022. 2022 का असिस्टेंट वाला जो पोस्ट है, ये वाला देखो, ये वाला क्लेरिकल का, विच इज बीइंग ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, और उसका लास्ट डेट वाज व्हाट? यस्टरडे वाज द लास्ट डेट. आप में से कितने लोगों ने ये फॉर्म फिल किया है? यस करके रिप्लाई कर दीजिए फास्ट. हाउ मेनी हैव फिल्ड दिस फॉर्म असिस्टेंट के लिए? ओके, तेजस्वी सेड यस. Oh, great. Harshal said yes. Great. Okay, almost okay. Abhijit, okay, great. Sahil, Tushar, oh, great. Thank you so much. Thank you so much, student. Okay. See, this is PO not yet come. ये आने वाला है. असिस्टेंट का SBI का पेंडिंग है, PO का पेंडिंग है. तो अभी भी आपके पास 3 चांसेस अभी भी बाकी आने वाला है. सेकेंड स्टूडेंट्स, RBI. What is RBI? RBI is nothing but what? Reserve Bank of India. If you are planning to join RBI, so आपके पास एक असिस्टेंट लेवल का एक एग्जाम होता है असिस्टेंट, और एक होता है ग्रेड बी. यस, ग्रेड बी इज नथिंग बट व्हाट? कंप्लीटली मैनेजमेंट लेवल पोस्ट है. उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगा? आई वुड सजेस्ट एवरीवन प्लीज गो टू द क्रोम एंड टाइप आरबीआई ग्रेड बी एलिजिबिलिटी. तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली ग्रेड बी के लिए क्या चाहिए. इफ यू आर एलिजिबल सो देन यू कैन गो फॉर दैट पोस्ट, अदरवाइज नो नीड टू रिक्वायर्ड, otherwise not required. Clear everyone? Okay, and I would suggest now write down here
Okay, write down this cooperative banks. So cooperative banks कितने होते हैं students? Let us write down one Saraswat. Second, you write down Abhyudaya. Then you write down SVC. What is SVC stand for? Shamra Vittal Cooperative Banks. Okay, तो ये 3 बैंक से एवरी ईयर वैकेंसी आता ही आता है, स्पेशली फॉर पीओ लेवल या एंड क्लिनिकल लेवल. तो आपके पास स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो साल भर में बैंकिंग के लिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 9 10. कितने चांसेस स्टूडेंट्स है आपके पास? एक साल में कितनी बार चांसेस आते हैं? 10 चांसेस आते हैं, जिसमें से आई मस्ट से 7 चांसेस कहां पर होंगे? पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करने के लिए. 3 चांसेस फॉर व्हाट? कोऑपरेटिव बैंक्स. इज दिस क्लियर एवरीवन? सो एवरी ईयर फ्रॉम आई मस्ट से फ्रॉम जून से लेके दिसंबर या जनवरी तक ये सारे चांसेस आपके पास आते ही आते हैं. होप दिस क्लियर. बैंक का पैटर्न सबको क्लियर हो गया है? होप आप लोगों ने इसे लिख लिया है? Yes. Okay. Thank you so much. Okay. Now we'll discuss about. Now let us come to insurance pattern. ये भी हम लोग डिस्कस कर देते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप और कहां पर अप्लाई कर सकते हो. Okay. Let's come to insurance. Why I'm talking about insurance now? Because if you're preparing for banking exams, so it means what? You're simultaneously preparing for insurance too. The reason is that because if you see exam pattern and syllabus for both insurance as well as your banking would remain same. So insurance में we'll talk about not private insurance, we'll talk about only a government of India insurance. So यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से insurance के pattern cover होते हैं. First we'll discuss that. Let us write down insurance. इंश्योरेंस में स्टूडेंट्स आपके पास सी देर आर यस ओके. आप में से मुझे कौन बता सकता है इंश्योरेंस में कौन कौन से कंपनीज आते हैं? एनीवन? टाइप फास्ट टाइप करो चैट बॉक्स में. जो जो आपको याद है प्लीज टाइप करते जाइए. व्हाट इज एलओसी? ओके, एलआईसी. वेरी गुड. एलआईसी. Yes. Other than that, anyone? Yes. Tejasri, Gaurav, fast. Divya, Janvi. Janvi saying SBI life insurance. No. That is not comes under government of India. It is a private. Okay, चलो. LIC के बाद स्टूडेंट्स होता है. LIC के बाद होगा स्टूडेंट्स NICL, then NIACL, then UIIC. Tejasri, which is a part of what? See, GIC, as you said, GIC, which is a what? Subsidiary of LIC. Yes, and yes, UIIC have written and OICL. Please now I'll just write down the full form. See, what is LIC? Everyone knows. Life Insurance Corporation. What is NICL? National Insurance. This is what? Write down full form of this. National Insurance Company Limited. National Insurance Company Limited. Write down that. This is nothing but what? National Insurance Company Limited. You should know what are the insurance companies under Government of India. What is NICL? New India Assurance Company Limited. New India Assurance Company Limited. New India Assurance Company Limited. What is UIC? United India Insurance Company Limited. And what is OICL? Oriental Insurance Company Limited. Clear everyone this? Oriental Insurance Company Limited. So students, these are the 5 top most companies जहां से every
एक असिस्टेंट के लिए आता है और एक होगा असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, विच इज नथिंग बट पीओ लेवल पोस्ट, assistant administrative officer. Hope this clear everyone. This is for what? Assistant level, and this is for what? Assistant administrative level के लिए होगा AO. Okay, this is Oriental Insurance. Oriental Insurance Company Limited. Clear everyone this? तो स्टूडेंट्स ये भी साल भर में आपको आते ही और सबका पैटर्न दोनों का सेम है। तो मैं हमेशा कहता हूं व्हाट मैटर्स एट द एंड कि आपको जॉब मिलना चाहिए, दैट टू इन अ गवर्नमेंट सेक्टर, दैट रियली मैटर्स, बिकॉज सी व्हाट मैटर्स एट द एंड कि आपके अकाउंट में एंड में, मंथ के एंड में कितना अमाउंट आ रहा है और कहां से आ रहा है, दैट रियली मैटर्स स्टूडेंट्स। सो अगर आप प्लानिंग टू ज्वाइन गवर्नमेंट सेक्टर तो यहां पर काफी अच्छा पैकेज है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में। तो होप आप लोगों ने इसे लिख लिया है। थैंक यू तेजश्री। Okay, now we'll discuss about pattern. See, bank and insurance, write down. पहले मैं आप लोगों को देता हूं क्लर्क एंड, पहले मैं आपको दूंगा प्रिलिमिनरी के बारे में, राइट डाउन। पहले आपको यहां पर ये समझ लीजिए स्टूडेंट्स कि जस्ट अ मोमेंट, एज वी डिस्कस कि यहां पर दो पोस्ट होते हैं, एक होगा असिस्टेंट लेवल का और एक होगा स्टूडेंट्स पीओ लेवल का। व्हाट इज पीओ? प्रोबेशनरी ऑफिसर। प्रोबेशनरी ऑफिसर, यस, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, असिस्टेंट एंड पीओ। ओके, अब यहां पर सी अगर आपको असिस्टेंट और पीओ ज्वाइन करना है तो आपके पास प्रिलिमिनरी ये एग्जाम होगा, उसके बाद आपके पास मेंस होगा और 3 राउंड में ये डिवाइड होता है इंटरव्यू। राइट डाउन, ये हम लोग राउंड बता रहे हैं मैं आपको। अगर आप असिस्टेंट के लिए ट्राई करते हो तो आपको क्या क्या देना जरूरी है। सो देयर आर 3 राउंड्स, 1 प्रिलिमिनरी एग्जाम followed by mains exams and then interview. Now please pay attention, if you are planning to go for assistant level exam which is called what? Clerical level exam, please pay attention। तो आपको प्रिलिमिनरी देना कंपलसरी, टिक मार्क कर दीजिए, कंपलसरी है प्रिलिमिनरी। जैसे ही आपका प्रिलिमिनरी क्लियर हो गया तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाते हो, तो आपको मेंस भी देना कंपलसरी है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स इंटरव्यू नहीं होता है, प्लीज रिमेंबर दिस। क्लियर एवरीवन? सो देयर इज नो इंटरव्यू इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर असिस्टेंट लेवल एग्जाम। अगर आपका वो क्रैक होता है, आपका प्री भी निकलता है, मेंस भी निकलता है, तो देयर विल बी डायरेक्ट ज्वाइनिंग, देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू। होप दिस क्लियर एवरीवन। हाँ, अगर आप पीओ के लिए ट्राई कर रहे हो, सो देयर हैज टू बी प्री, देयर हैज टू मेंस and interview. There will be a 3 rounds. Clear everyone this? Yes. अब ये प्री कितने मार्क्स का रहेगा, मेंस कितने मार्क्स का रहेगा, इफ देयर इज एन इंटरव्यू सो इंटरव्यू कितने मार्क्स का रहेगा, देन सब्जेक्ट क्या रहेंगे, दैट एवरीथिंग विल डिस्कस नाउ इन डिटेल्स। ये लिख लिया आप लोगों ने? Okay, thank you so much, thank you so much. Now we'll write down, now please write down exam pattern. Yes, exam pattern. First we'll discuss for what? Clerk and PO दोनों के लिए, बिकॉज प्रिलिमिनरी जो होता है, प्रिलिमिनरी पैटर्न, प्रिलिमिनरी ये दोनों एग्जाम्स के लिए सेम पैटर्न होता है, सब्जेक्ट भी सेम रहेंगे, पैटर्न भी सेम रहेगा। सो दैट विल डिस्कस फर्स्ट असिस्टेंट एंड पीओ के लिए। मेंस में थोड़ा सा चेंज होता है, दैट विल आल्सो डिस्कस। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका होगा 1, सेकेंड एंड 3। देयर आर 3 सब्जेक्ट्स इन प्रिलिमिनरी एग्जाम्स। 1 होगा इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज,
सेकेंड होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एप्टीट्यूड है, विच इज आई हैव रिटन एपीटी बट यू राइट एप्टीट्यूड. What do you mean by quantitative aptitude, which is nothing but maths? Okay, whatever. Okay, Siddhi, if you have any doubts, okay, if you have any doubts, you can ask me at the end of the session, where I'll give you 5 minutes to everyone. Now, when I'm explaining, please. Okay, now third would be reasoning. Reasoning ability. Okay. See, English के questions कितने रहेंगे students? Please pay attention. English questions रहेंगे 35, 30, Quant 35 and reasoning 35. टोटल कितना हो गया स्टूडेंट्स? प्री कितने मार्क्स का होगा? 100 क्वेश्चंस. क्लियर एवरीवन? मार्क्स कितने रहेंगे? 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 35. होप दिस क्लियर एवरीवन? सो 100 क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट्स 100 मार्क्स. क्लियर एवरीवन दिस? नाउ टाइम आपको क्या दिया जाएगा? टाइम. सो आपके पास टाइम रहेगा स्टूडेंट्स 1 आवर, विच इज नथिंग बट 60 मिनट्स. बट वो कैसे रहेगा? दैट 60 मिनट्स डिवाइड्स इनटू 3 सेक्शंस. सो यहां पर इंग्लिश के लिए आपके पास रहेगा 20 मिनट्स, कॉन्ट के लिए रहेगा 20 मिनट्स और रीजनिंग के लिए रहेगा 20 मिनट्स. क्लियर एवरीवन दिस? Okay, now what happens students? Pay attention. If your 20 minute is over, see the paper going to be online. Paper कैसे रहेगा? Paper mode would be online mode. It should be online mode. और type क्या रहेगा? Objective. What do you mean by objective? It is nothing but MCQ type, multiple choice question. Now you'll ask me whether it has a negative marking or not. Yes, every question there is a negative mark. That is called 1/4. Write down, which is 0.25. This is nothing but negative marking. What do you mean by negative marking? Suppose अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है, so आपके राइट में से 0.25 मार्क्स would be deducted. Okay, now let us come to the original point. Suppose आपने इंग्लिश से स्टार्ट किया, you will get 20 minutes. Unless and until आपके जब तक 20 minutes फिनिश नहीं होते स्टूडेंट्स, आप सेकेंड सेक्शन पे नहीं जाओगे. आपका at a time only one section will be open and that section will get 20 minutes. Once your 20 minutes is over, then only you'll able to go to the next part, which is quantitative aptitude. Again, you will get 20 minutes for what? Quantitative aptitude. Whatever you have to do in that quantitative or in English or in reasoning, you are supposed to do only in 20 minutes. Hope this clear? So every student will get 20 minutes, particularly for each subject. एंड जैसे ही आपका 20 मिनट्स खत्म होता है, आप यहाँ पर चले जाओगे. समटाइम स्टूडेंट्स में आस्क मी, सर इंग्लिश में अगर समझो मेरा 10 मिनट्स में, माय इंग्लिश इज वेरी गुड, अगर मेरा 10 मिनट्स में खत्म हो जाएगा तो मैं बाहर आ सकता हूँ और मैं कौन स्टार्ट? यू कैन नॉट स्टार्ट. क्लियर एवरीवन? अगर आपका 5 मिनट में भी इंग्लिश होता है, आपको 20 मिनट्स तक वहां पर बैठना ही बैठना है. जब तक 20 मिनट्स खत्म नहीं होते हैं, आपको यू कैन नॉट कम आउट ऑफ इट. क्लियर एवरीवन दिस? नाउ एनीवन यहां पर किसी को डाउट है? ओके ओके, थैंक यू सो मच. सो ये पैटर्न स्टूडेंट्स हो गया, एग्जाम वाला पैटर्न हो गया प्रिलिमिनरी के लिए. दैट इज फॉर व्हाट? बोथ असिस्टेंट एंड पीओ के लिए. व्हाट वी हैव डिस्कस्ड हियर, द एग्जाम इज गोइंग टू बी ऑनलाइन. इट इज गोइंग टू बी ऑब्जेक्टिव, व्हिच इज कॉल्ड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट दिस इज प्रिलिमिनरी पैटर्न, and we have discussed about whether it has a negative marking or not. Yes, it has a negative marking of what? 0.25. Now let us come to mains wala pattern. ओके, नाउ स्टूडेंट्स मेंस हम दोनों के अलग अलग देखेंगे. मेंस फर्स्ट आई विल राइट हियर फॉर असिस्टेंट.
और मैं यहां पर लिख देता हूं पीओ के लिए। अब ये मेंस का जो है सबके लिए सेम है, एसबीआई के लिए भी सेम है, बैंकिंग लाइक आईबीपीएस के लिए सेम है, इंश्योरेंस के लिए भी सेम है। ओके, असिस्टेंट में सब्जेक्ट लिख लीजिए, क्या क्या सब्जेक्ट आपको रहेंगे। फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट पीओ के बारे में मैं आपको बता देता हूं। यहां पर फर्स्ट पार्ट 1 2 3 4 and 5. What is first part? Reasoning and computer. कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं फॉर 10 मार्क्स। यहां पर क्वेश्चंस होंगे 45, मार्क्स होगा 60 और टाइम, टी स्टैंड फॉर टाइम, दैट इज फॉर 60 मिनट्स। प्लीज राइट डाउन दिस। तो यू विल हैव अ सफिशिएंट टाइम। अगर आपका प्री निकल जाता है, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू क्रैक मेंस। व्हाट इज डिफिकल्ट? टू क्रैक द फर्स्ट स्टेप। So there will be a first subject which is reasoning and computer, which is a combination of reasoning and computer, where total number of question would be 45. Marks would be 60 and time you will have a 60 minutes. 60 minutes, students, that is nothing but 1 hour you will have a separate. Second, write down English language. English language, there are total number of question 35. Marks 40 and time you have a 40 minutes. Yes, write down this. Third would be DA and DI, which is a part of what? Maths. What is DA? Write down full form of DA. Data analysis. DA stand for what, students? I'll write here. What is DA? Data analysis. And what is DI? Which is data interpretation. So write down this. So DA means data analysis. DI means what? Data interpretation. What do you mean by data interpretation? The question based on what? Graphs. There would be 35 questions. Marks would be 60 and time again you have a 45 minutes. So write down this. Fourth would be again current affairs. What is CA? CA is nothing but what? Current affairs which are related to banking awareness. There will not be a question from history, geography, Indian polity, economy, general science से कुछ भी क्वेश्चन नहीं रहेगा. There will be question from what? Current events. पिछले 4 महीने में जो भी हुआ है. Suppose अगर आप दिसंबर में एग्जाम दे रहे हो, so there are many students they ask such kind of question कि सर कब मुझे कौन से मंथ से मुझे करंट अफेयर्स पढ़ना है. So I would suggest everyone, करंट अफेयर्स आपको जो भी पढ़ना है वो आप लोगों को पढ़ना है स्टूडेंट्स. अगर आप सपोज दिसंबर में एग्जाम देने वाले हो मेंस का, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगस्त से आपका करंट अफेयर्स पढ़ना चालू हो जाना चाहिए, 4 या 5 महीने पहले से. इज दिस क्लियर एवरीवन? यस. करंट अफेयर्स को क्वेश्चन लिख लीजिए 40 मार्क्स एंड यू हैव अ 35 मिनट्स विच इज सफिशिएंट टाइम. यहां तक स्टूडेंट जो पैटर्न होता है, यहां तक जिसे हम लोग कहते हैं एमसीक्यूज. वन क्वेश्चन फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस. अब यहां पर स्टूडेंट्स, एज आई सेड, इफ यूर अगर आप पीओ के लिए प्लान कर रहे हो, स्पेशली पीओ के लिए, तो पीओ इज नथिंग बट व्हाट? मैनेजमेंट लेवल पोस्ट वेयर दे ऑफर यू वेरी गुड पैकेज. अगर आप क्लेरिकल में अगर आपको पैकेज मिलता है 30,000, तो पीओ में आपको मिलेगा अबव 50,000 एंड यू विल डायरेक्टली गोइंग टू वर्क अंडर मैनेजमेंट और आई मस्ट से विथ मैनेजमेंट. ओके, तो यहां पर पांचवा जो है विच इज नथिंग बट डिस्क्रिप्टिव. राइट डाउन, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा. डिस्क्रिप्टिव, देयर विल बी 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस रहेंगे. मार्क्स रहेगा 25 और आपको टाइम रहेगा 30 मिनट्स. क्लियर एवरीवन दिस? और ये पेपर, इसके लिए आपको सेपरेट 30 मिनट्स मिलेगा और वो आपको एक ही दिन में देना है. जैसे आपके ये सेक्शन खत्म हो जाएगा, ये चारों पेपर आपके खत्म हो जाते हैं और इमीडिएटली आपको फिर डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट करना है. और वो भी डिस्क्रिप्टिव आपका ऑनलाइन होगा, आपको लिखना नहीं है. देयर विल बी, और डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन किस पे रहेंगे वो भी लिख लीजिए. एक होगा लेटर राइटिंग और एक होगा एसे राइटिंग.
one question from letter, one question on letter writing, one question on what, essay writing. So letter writing और essay writing क्या होगा, क्या टाइप के क्वेश्चन, जैसे अभी पता है हम लोग स्कूल में होते तो हमें पता था श्यामची आई ह्याच्यावरती निबंध लिहा, मी पंतप्रधान झालो तर, मग आपण ते निबंध लिहायचो. त्या लेवलचे निबंध याच्यामध्ये येत नाहीत स्टुडंट्स. ह्याच्यामध्ये निबंध जे तुम्हाला विचारले जातात, दॅट इज व्हॉट रिलेटेड टू युअर सेक्शुअल हॅरॅसमेंट, वुमन एम्पॉवरमेंट, इफेक्ट ऑफ कोरोना. ओके, सो दीज आर टॉपिक्स विच आर रिलेटेड, और वी कॅन से बर्निंग टॉपिक्स जे करंट मार्केटमध्ये चालू असतात, ग्लोबलायझेशन, डिजिटल बँकिंग. सो त्याचे आपल्याकडे मटेरियल आहे, दॅट विल बी गिवन टू एव्हरी स्टुडंट. ओके, सो दिस सेक्शन इज क्लिअर एव्हरीवन. तो यहां पर देखो, इफ यू एक्सेप्ट दिस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 155 एक्सक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव, मार्क्स आपके हो जाएंगे 200. अगर आप ये 25 पकड़ोगे तो 225 होगा, और टाइम आपको मिलेगा स्टूडेंट्स 180 मिनट्स. प्लीज राइट डाउन दिस. Clear everyone this? Now write down assistant first, second, third and fourth. There is no descriptive in assistant. Descriptive in what? PO. But assistant में descriptive नहीं होता है. First method again the same. Reasoning, and computer. Second would be English language. Third would be quantitative aptitude. मैंने जस्ट शॉर्ट फॉर्म लिखा, आप पूरा लिख लीजिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, विच इज व्हाट, मैथ्स. एंड फोर्थ, करंट अफेयर्स, which is related to what, financial or banking industry. And as I said students, every month we produce digital magazine of current affairs of 70 to 80 pages का. Okay, that वो सबको दिया जाएगा, प्लीज रिमेंबर दैट. एंड अगर आपको करंट अफेयर्स में इंप्रूव होना है, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट, just a moment. Just a moment, student. Yes. Welcome to what? Yes, students. Now, see, now what we do, students, every current affairs के लिए हम लोग क्या करते हैं? We provide 6 sessions, 6 lectures, live sessions on current affairs. As well, we provide every month monthly digital magazines to each and every student on WhatsApp. Second, what we do, we provide 15 to 20 minutes का daily current affairs का videos on our what, YouTube channel. So मैं अपने chat box में students, now I'm going to give you a channel link. Okay, see, मैंने अभी just अपने channel का link डाला हुआ है स्टूडेंट. मिला सबको? Okay, click on that link and subscribe immediately, and do not forget to click on bell icon. So what will happen, whenever we upload current affairs videos or any videos which are related to study, आपको उसका notification मिलता रहेगा. सबको लिंक मिला है? जैसे ही आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, प्लीज मुझे यस करके, डन करके डाल दीजिए. ओके, दिव्या डन, जानवी डन. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? डू इट फास्ट स्टूडेंट्स. वी हैव. सर नहीं मिला है मुझे लिंक. रेणुका, चॅट बॉक्स मध्ये चेक कर. हे बघ, परत पाठवतो. हे बघ, आता आली चॅट बॉक्सला. ओके सर. बघ, आता आली बघ चॅट बॉक्स मध्ये.
ओके, फोर्थ सब्जेक्ट असिस्टेंट का है, सीए मींस करंट, सिद्धि द फोर्थ सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स। डन करके डाल दीजिए। यूट्यूब चैनल का आपको लिंक दिया गया है, सब्सक्राइब कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकॉन। बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक कीजिए ताकि व्हेनेवर वी अपलोड एनी काइंड ऑफ वीडियोस रिलेटेड टू स्टडी, आपको उसका इंफॉर्मेशन इंटीमेशन आना चाहिए स्टूडेंट। एवरी डे स्टूडेंट्स वी आर अपलोडिंग टू टाइप ऑफ वीडियोस, वन which is related to current affairs and the second to improve your vocabulary English. So there we covered 10 questions of difficult level from different papers और उसका आपको explanation दिया जाता है। So every day everyone has to spend 30 minutes on what? To watch what? YouTube videos. Clear? One current affairs का और one the Hindu vocabulary which is related to English language. Hope this clear. सब लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है? That's great. Yes, let's come to this. Now reasoning में, yes, done. Okay, Sarung ke done. Harshada, okay, thank you so much. Okay, now questions. Write down questions. 50. English language 40. Quantitative aptitude 50. Current affairs 50. Total number of questions comes to 190 and marks 60, 40, 50 and 50, which is nothing but 200. Yes, now write down time. 45, 35, again 45 and again 35. Total comes to 160 minutes. Yes. Clear this, everyone? Great. Thank you so much. So now, students, what we have discussed today, we have discussed about how many chances you'll have in a year if you're planning to go for insurance or banking. Second, we have discussed about preliminary exam pattern. We have discussed about rounds. There are 3 rounds, one pre, mains, and interview. Then we have discussed about mains pattern. What is mains? If you're going for a PO level, then there is a descriptive. And if you're going for assistant level, there will be only 4 subjects, which are reasoning, English, quantitative aptitude, and current affairs. Clear, everyone, this? Yes. Now we'll discuss about एक ओवरऑल मैं आपको कट ऑफ का आइडिया दे देता हूं. Let us pay attention कट ऑफ, तो आपको भी समझ में आएगा कि कितना कट ऑफ होना चाहिए. Okay. Now you should know कि आपको कितना स्कोर करना है स्टूडेंट्स. प्लीज पे अटेंशन. चलो, let us talk about first PO. PO का पहले विल टॉक अबाउट प्रीलिम्स. क्लियर? सी प्रीलिम्स में एज एवरीवन नोस कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होगा. उसमें से कट ऑफ लिख लीजिए अगर आप जनरल कैटेगरी में हो. एंड सेकंड फॉर व्हाट? जनरल और ओबीसी के लिए ऑलमोस्ट सेम है स्टूडेंट्स. और यहाँ पर एससी एसटी के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो कट ऑफ है पीओ का. लास्ट ईयर का कट ऑफ में आई एम डिस्कसिंग अबाउट व्हाट लास्ट ईयर कट ऑफ. इट वाज 50.5. क्लियर हो गया आप लोगों को? इट मींस व्हाट? अगर आप लोगों को मेंस के लिए क्वालिफाई होना है तो आपको 100 में से अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो या ओबीसी तो आपको 50.5 के ऊपर आपको आना ही चाहिए. अगर आप एससी एसटी से हो स्टूडेंट, एससी कैटेगरी से हो, जस्ट मिनट, एससी से हो और यहाँ पर एक एसटी भी है तो आपको है 44.5 एंड इफ यू बिलोंग्स टू एससी तो 38 है. इतना आपको स्कोर करना. सबसे लोएस्ट होता है एसटी के लिए विच इज शेड्यूल्ड ट्राइब.
उसके बाद होगा एससी के लिए, देन ऊपर जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए। तो जनरल के लिए मिनिमम 50.5 उतना आपको मिलना ही मिलना है। अगर उससे नीचे मिल गया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और आप मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं होगे। एससी के लिए कट ऑफ कितना है? 44.5 एंड व्हाट अबाउट एसटी व्हिच इज 38। होप दिस क्लियर एवरीवन। नाउ विल सी सेक्शन वाइज, प्रीलिम्स का सेक्शन वाइज भी देखते हैं। ओके, सेक्शन वाइज देख लीजिए। सेक्शन वाइज में पहले मैं आपको देता हूं इंग्लिश लैंग्वेज, देन वी हैव क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड थर्ड सेक्शन वी हैव रीजनिंग एबिलिटी। यस, प्लीज नोट डाउन दिस। इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चंस कितने रहेंगे स्टूडेंट? 30, क्वांट में 35 और रीजनिंग में 35। ओके, ये है जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ और स्टूडेंट ये है एससी एंड एसटी के लिए कट ऑफ। प्लीज पे अटेंशन, दिस इज फॉर जनरल एंड ओबीसी, दिस इज फॉर एसटी एंड एसटी। ओके, जस्ट अ मोमेंट स्टूडेंट, जस्ट अ मोमेंट। यस, ओके। नाउ आप में से एनीवन हु कैन हेल्प मी विद कि सेक्शन वाइज कट ऑफ में कितना कट ऑफ इंग्लिश के लिए 30 में से हो सकता है स्टूडेंट्स? एनीवन कैन गेस? जनरल कैटेगरी के लिए 30 में से कितने मार्क्स मिलने चाहिए? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स इफ यू कैन गेस। ओके, 15, अमया सिंह 28। ओ, व्हाट अबाउट अदर्स? प्लीज एवरीवन शुड रिप्लाई, मुझे पता चलेगा कि आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है। 25। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? भाग्यश्री, ओके, तेजश्री एटलीस्ट 15 चाहिए। ओके ओके, जानवी, ओके, अमया, ओके, चलो ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स पे अटेंशन, आप जो सोचते हो वैसा कभी होता नहीं है। सी, लेट मी एक्सप्लेन यू। अगर आप जनरल के लिए, जनरल ओबीसी से बिलोंग कर रहे हो, तो आपको 30 में से मिनिमम इतने मार्क्स मिलने चाहिए, एटलीस्ट 10 मार्क्स। क्लियर एवरीवन? है ना सिंपल? 30 में से खाली 10 मार्क्स चाहिए स्टूडेंट। क्वांट में 9 मार्क्स और रीजनिंग में 10 मार्क्स, बस इतने ही चाहिए। क्लियर एवरीवन दिस? अगर इतने मार्क्स मिलते हैं तभी आप पास होते हो। ये ध्यान में देखो क्या बोल रहा हूं, प्लीज मार्क माई वर्ड में क्या कह रहा हूं। इतना अगर आपको मार्क्स मिला तो आप पास हो गए, आप मेरिट में नहीं आए हो। सो व्हाट अबाउट एससी के लिए? एससी के लिए लिख लीजिए 6.75, बस इतना ही स्कोरिंग चाहिए। 6.25 एंड अगेन 6.25। यस, बहुत सिंपल है। क्लियर एवरीवन दिस? तो सबसे लो एससी एंड एसटी के लगता है। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर आप अभी आप मुझे पूछोगे सर पास हो गए लेकिन मेरिट में नहीं, व्हाट डज मीन दिस? तो यहां पर भी स्टूडेंट देखो पास हो गए। आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, नाउ पे अटेंशन। इसका टोटल क्या होगा मुझे बताइए, टोटल कितना होगा ये? एनीवन हु कैन टेल मी टोटल? 29। और इसका टोटल कितना होगा स्टूडेंट? इसका टोटल 19.25। क्लियर एवरीवन दिस? यस। अब देखो स्टूडेंट्स क्या है, एज वी हैव डिस्कस कि देखो यहां पर आपको हर एक सेक्शन में मिनिमम इतने मार्क्स मिलने चाहिए, 10, 9 और 10। किसी भी स्टूडेंट को अगर 10 से अगर 8 मार्क्स मिल गए, वो वहीं पर क्या हो गया? फेल हो गया। क्लियर एवरीवन? लेकिन आपका सेक्शन वाइज कट ऑफ का टोटल इतना होना चाहिए स्टूडेंट्स कि वो ये 50.5 को क्रॉस करना चाहिए। क्लियर? मतलब सपोज अगर आपको यहां पर 25 मिला है, यहां पर आपको 25 मिला और यहां पर आपको 20 मिला, तो देखो टोटल कितना हो गया? 25, 25, 20, टोटल कितना होता है स्टूडेंट? 70। यस और नो? अब इसमें आपने देखो दोनों का कंडीशन क्रॉस कर लिए। एक, आपका सेक्शन वाइज जो कट ऑफ था,
जहां पर 10 चाहिए था वहां पर आपने 25 स्कोर किया, जहां पर 9 चाहिए था वहां पर आपने 25 किया, और जहां पर 10 चाहिए था वहां पर 20, मतलब आपने ये भी कवर कर लिया। और जहां पर ओवरऑल कट ऑफ था, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कट ऑफ, वो कितना था 50.5, और आपको कितना मिला है 70, तो आपने ये भी क्रॉस कर दिया, तभी आप स्टूडेंट्स मेंस के लिए क्वालिफाई होगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस और नो? यस। तो यस, क्लियर एवरीवन दिस, थैंक यू सो मच। यस, तो हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? तो इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल गिव यू स्ट्रैटेजी, जब हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट टाइम आई विल गिव यू स्ट्रैटेजी कि ये 70 के ऊपर हम लोग कैसे स्कोर कर सकते हैं, और वो भी इजीली विदाउट पुटिंग अ मच एफर्ट। बहुत सिंपल वैसे कर सकते हैं, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट, बहुत इजी है। बट ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज सेक्शन वाइज कट ऑफ और व्हाट इज स्टैंडर्ड कट ऑफ। स्टैंडर्ड कट ऑफ आपका टोटल, ये आपका यहाँ पर 29 आ रहा है, बट जो यहाँ पर है उससे ज्यादा होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कट ऑफ। ये सेक्शन वाइज क्लियर हो गया आप लोगों को? ये हो गया प्री के लिए। नाउ विल आई जस्ट गिव यू अबाउट मेंस। मेंस के देख लीजिए फटाफट। मेंस मेंस का जो कट ऑफ था लास्ट ईयर 225 में से स्टूडेंट्स 80.75, राइट डाउन 80.75, 225 में से। 225 मतलब क्या? इसमें क्या क्या इंक्लूड हो गया? 200 का ऑनलाइन एग्जाम और 25 मार्क्स का क्या डिस्क्रिप्टिव, ये ध्यान में, दोनों मिला के होता है 225। उसमें से आपको मिला 80.75, कम से कम मिलना चाहिए। ये हो गया जनरल के लिए। ओबीसी के लिए इट वाज 70.75, फॉर एससी इट वाज 65.5, और फॉर एसटी इट इज 57.575। होप दिस क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ विल सी सेक्शन वाइज मेंस का। सेक्शन वाइज रीजनिंग एंड कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन में सब्जेक्ट लिख रहा हूं, इंग्लिश लैंग्वेज, डीए एंड डीआई, बैंकिंग अवेयरनेस एंड डिस्क्रिप्टिव। ये मैंने सारे लिख लिए हैं। मेरे पास मार्क्स कितने? इसके मार्क्स स्टूडेंट 60, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 मार्क्स, इसके 60 मार्क्स, बैंकिंग अवेयरनेस के 40, और डिस्क्रिप्टिव के मेरे पास 25। यस। अब जनरल कैटेगरी के लिए कितना चाहिए कट ऑफ, और एससी, एसटी एंड ओबीसी के लिए कितना कट ऑफ चाहिए? यहां पर ओबीसी इंक्लूड हो गया है एससी के साथ। ओके, एनीवन, चलो गेस करो फटाफट। रीजनिंग में मुझे बताइए क्या हो सकता है कट ऑफ? 60 में से कितना मिलना चाहिए स्टूडेंट आप लोगों को कट ऑफ? जब तक वो कट ऑफ सेक्शन वाइज नहीं मिलेगा पास नहीं हो गई, ये ध्यान में रखना है। और मेरिट में आने के लिए आपको उसका 3 गुना स्कोर करना है, तभी आपका टोटल 80.75 के ऊपर जाएगा। एनीवन? रीजनिंग 60 में से कितना मिलना चाहिए स्टूडेंट्स? एनी कोई गेस कर सकता है? नहीं रेणुका, उतना नहीं मिलना चाहिए, राइट डाउन 7.25, बस इतना ही चाहिए। और यहां पर 4.5, ये सेक्शन वाइज कट ऑफ बोल रहा, इतना तो मिलना ही चाहिए अगर आपको पास होना है तो। इंग्लिश लैंग्वेज में लिख लीजिए 13.25, और यहां पर 10। डीए एंड डीआई में 9.25, और यहां पर 6.5। ओके, इसके बारे में मुझे कौन बताएगा कितना होगा? 40 में से बैंकिंग अवेयरनेस में कितना मिलना चाहिए? एनीवन हु कैन गेस? 40 में से कितना कट ऑफ लगा रहेगा लास्ट ईयर सेक्शन वाइज? एनीवन कोई गेस कर सकता है स्टूडेंट? नो रेणुका, नो। और इट वाज लोवेस्ट 3.75। इट बहुत सबसे लोवेस्ट 3.75। एंड यहां पर देखो, यहां पर स्टूडेंट एससी एसटी के लिए 1.75, बस मतलब 40 में से 2 मार्क्स लाने हैं, तब आप पास हो जाओगे। नाउ व्हाट डज इट मीन स्टूडेंट्स? टेल मी व्हाट डज इट मीन? 3.75 का मतलब क्या होता है? इट मींस करंट अफेयर्स का मेरिट
और पेपर वॉज बिट डिफिकल्ट, इसीलिए बहुत लोगों ने स्कोर नहीं किया. दैट इज व्हाट द सेक्शन वाइज कट ऑफ बीन रिड्यूस्ड. क्लियर एवरीवन? डिस्क्रिप्टिव में जनरल के लिए 10 क्वेश्चन चाहिए, 10 मार्क्स, और यहां पर 8.25. प्लीज रिमेंबर दिस. इसीलिए स्टूडेंट्स हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस से बहुत फोकस कर रहे हैं. एवरी डे हमारा वीडियो आता है. क्लियर स्टूडेंट? सो दिस वाज सेक्शन वाइज कट ऑफ. और 225 में से आपको कितना मिलना चाहिए? 80.75 के ऊपर, विच इज इजीली स्कोर्ड. इसीलिए कहते हैं कि पीओ का पेपर अगर आपको क्रैक करना है, प्लीज पे अटेंशन में क्या कह रहा हूं, अगर आपको पीओ का क्रैक करना है तो आपको क्लर्क का आना चाहिए, क्योंकि पीओ के पेपर में 70% जो सेक्शन होता है वो क्लर्क वाला होता है. इसीलिए हम लोग क्लर्क के साथ पीओ पढ़ाते हैं. होप दिस क्लियर एवरीवन? ये लिख लिया आप लोगों ने? यस. अब इसका यस, चलो क्लियर. ओके, ये हो गया पीओ का. नाउ लेट अस टेक अबाउट क्लरिकल असिस्टेंट के बारे में विल डिस्कस नाउ. असिस्टेंट का कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है ना, सेक्शन वाइज कट ऑफ होता है या कभी कभी नहीं होता. लास्ट ईयर इट वाज नॉट देयर, सो देयर इज नो डेटा सेक्शन वाइज का. बट मैं आपको ये दे सकता हूं, आईबीपीएस असिस्टेंट प्री का कट ऑफ ले लीजिए. प्री कट ऑफ इट वाज 7.25. कितने में से? 100 में से, स्पेशली फॉर महाराष्ट्र. बिकॉज क्लेरिकल का जो होता है वो स्टेट वाइज होता है. प्लीज रिमेंबर, असिस्टेंट का जो होता है वो उसका रिजल्ट स्टूडेंट स्टेट वाइज होता है, और पीओ का नेशनल वाइज, नेशन वाइज होता है. हाँ, अब ये 2000 आई मस्ट से, ये 2021 के लिए था. सो 2019 में इट वाज अराउंड 60 पॉइंट समथिंग था, 50, और यहां पर कुछ 64 पॉइंट समथिंग था. यस, 2020 में. तो आपका रेंज आप देख लीजिए, 60 से लेके 70 तक आपको स्कोर करना है एवरेज. तो हम लोग आपको 80 प्लस स्कोर करने के लिए सिखाते हैं. आप जब 80 प्लस स्कोर करोगे तो भी आप 75 या 78 तक आप एंड हो जाओगे और आपका प्री में सिलेक्शन हो पाएगा. और ऑब्वियसली बट ऑब्वियस क्लेरिकल का पेपर इजी होता है एज कंपेयर टू पीओ पेपर. प्लीज टू रिमेंबर दैट. और मेंस में देख लीजिए, मेंस आपका 100, इसका नॉर्मलाइजेशन करके 100 में से स्कोर करना है. एज एवरीवन नोस कि ये 200 मार्क्स का है, लेकिन वो 100 में से पकड़ते हैं, और दैट कम्स टू 34.38. राइट डाउन. यस, कितना? दैट वाज द स्कोर महाराष्ट्र के लिए स्टेट वाइज मेंस में. होप दिस क्लियर एवरीवन? तो ये कट ऑफ से आपको ये पता चलेगा स्टूडेंट्स कि आपको कितना स्कोर करना है. अब यहाँ पर सेक्शन वाइज कट ऑफ कभी होता है कभी नहीं होता है. लास्ट ईयर इट वाज नॉट देयर, बट पीओ में था, तो मैंने पीओ का आपको सेक्शन वाइज कट ऑफ दिया. इट वाज वेरी लोवेस्ट बिकॉज द पेपर, मेंस का पेपर बिट डिफिकल्ट होता है. यहाँ पर मेंस के पेपर के लिए आपको ट्रिक्स यूज नहीं होता है. आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सारे सब्जेक्ट का. सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन दैट पेपर. अदरवाइज आपने देखा रहेगा कि सबका लोवेस्ट आपने जो सोचा था 25, 35, 28, उससे बहुत कम है. मतलब किसी भी 10 और 11 से ज्यादा नहीं गया हुआ है. क्लियर एवरीवन दिस? स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया तो यस कर दीजिए. ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हमारा सेशन हम लोग यहीं पर हम लोग एंड कर देते हैं. क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं सिलेबस. अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे स्टूडेंट्स? एग्जाम का सिलेबस और टॉपिक वाइज मार्क्स.
ये हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखने वाले हैं, जिसमें प्री और मेंस असिस्टेंट एंड पीओ के दोनों का सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं। होप दिस क्लियर। ओके, नाउ इफ यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट्स, मैंने सारी चीजें आपको डिटेल्स में बता दी है, आपको समझ में आ गया पासिंग का मतलब क्या होता है और पासिंग का मतलब क्या होता है एंड कट ऑफ का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों को क्लियरली समझ में आया रहेगा। होप दिस क्लियर एवरीवन। ओके, नाउ इफ यू हैव एनी डाउट्स, want to ask anything, you can ask me student. No Janvi, yes, Janvi ने सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जानवी, as I said in my webinar, और अपना सेशन वैसा होता है कि we conduct Monday to Friday, 5 days in a week, evening 8 to 9. Now next session would be on Monday. Clear everyone? So Monday to Friday रहेगा। Okay, सिद्धि को एक डाउट है, सर I have one query, let me read सिद्धि। Sir, I have one query is I just fill up IBPS form. यामध्ये PO आणि असिस्टंट का डिफरेंट फॉर्म फिलअप करावे लागतो। यस, ऑब्वियसली। सी नाउ जिन्होंने भी असिस्टेंट का फॉर्म भरा है वो असिस्टेंट के लिए ही भरा है। PO का वी आर एक्सपेक्टिंग नोटिफिकेशन विल कम फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। क्लियर सिद्धि? एंड नाउ अभी आप सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो गए हो। आप में से जो भी व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं रहेगा वो मेरे नंबर पे, ये मेरा नंबर सबको पता है, जिनको नहीं पता है प्लीज नोट डाउन दिस माय नंबर 8652221988। ये नंबर पे मुझे असिस्टेंट फॉर्म अजून अवेलेबल नहीं है, नहीं आता, नहीं अवेलेबल है। इस नंबर पे मुझे आप हाई कर दीजिए कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हूं या नहीं हूं, तो मैं आपको ऐड कर देता हूं। or whenever notification comes from banking sector or maybe from any government sector, so we'll keep on updating. Is this clear everyone? Yes students, so thank you students, thank you for joining. It was a wonderful session with you all. आज का सेशन हम लोग यहीं पर रोकते हैं। It was for 45 minutes, but from Monday it will be for 1.5 hour, 8 to 9:30 will session. Thank you Janvi, thank you everyone, thank you so much. Have healthy food, sleep well, take as much as you can rest, and we'll meet on Monday at 8 o'clock. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Bye bye.